Good morning, students. So today is our last topic of Stream 3. In this, we are going to do topic number 6, handling text, and the seventh topic is that dynamic text. This is our last video of the theme 3. After that, we completed this whole chapter. So what we done in the whole chapter, like the sources were the what was the source was the Mahabharata and the other text also, but basically this chapter is a whole related to the Mahabharata. In that Mahabharata, what we had done, like in this chapter from Mahabharata, what we taken the social things, societies, means historians took the things that relate to the societies, that relate to the social history, and from this source we historians try to understand what kind of society was there at the time of 600 BC to 600 CE. Clear? So we all already done, like the varna system and everything we had already done. Clear? Now this topic is basically related to that how the history Mahabharata is so vast, so vivid, then how the historians handle the whole text, how they read out. If we suppose we as a historian seeing that what were the basic things in the Mahabharata, how we will handle. It's too vivid, it's a too big, that epic, how we can do. So so historians, before starting this, historians trying to find out the basic things. Clear? How they means in this topic we are going to do that how they handle the text. What were the things? Okay, the basic things what historians tried, that is in the Mahabharata he considered several elements. In that elements, what were the elements? In that elements, historian trying to find out about the language, basic thing, kind of text, how with how many kinds of text, how different kinds of text written in this. Then after that the authors. Clear? And after authors, what was the date, and then the place. So these were the things that historians try, and the last one is that, sorry, content. Last one is content. So these were the things that historians trying to find out. Clear? Now see, language. So how many? Language, date, kind of text, content. These were the things that by these things historians trying to find out actually the fact, how much it is fact and how much is the story and all that. Clear? So let's talk about one by one. First, language. In the language, first of all, whether the texts were written, historian trying to find out whether the texts were written in the Pali, Tamil or Prakrit, that was used by the ordinary peoples. And the another is that Sanskrit में, अनदर में उन्होंने क्या फाइंड आउट किया? संस्कृत, दैट बेसिकली टेक्स्ट रिटन इन द संस्कृत में लिखा हुआ था, दैट मोस्टली संस्कृत यूज्ड बाय द एलाइट्स एंड द प्रीस्ट, लाइक ब्राह्मण या फिर जो मेन जो उसके एलाइट्स जो होते थे वही संस्कृत में जो है लिखा करते थे या पढ़ा करते थे. तो एक चीज़ तो इन्होंने ये फाइंड आउट की कि ऑर्डिनरी पीपल कौन सी लैंग्वेज बोला करते थे? लैंग्वेज प्रकृत, पाली एंड द तमिल, एंड द हायर क्लासेज और द ब्राह्मणाज यूज द लैंग्वेज दैट वाज द संस्कृत. इस चीज़ को इन्होंने ध्यान में रख के जो है टेक्स्ट को पढ़ा है कि जो पाली या प्रकृत में जो चीज़ें आ रही हैं वो क्या बता रही हैं या वो किस तरीके से बता रही हैं महाभारता के बारे में या किसी उसके किसी पर्टिकुलर एपिसोड के बारे में. क्लियर? नेक्स्ट इज द काइंड ऑफ द टेक्स्ट. टेक्स्ट कितनी तरीके के टेक्स्ट? दो तरीके के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से. एक तो स्टोरी बेस्ड एंड अनदर वन इज द मंत्रास. क्लियर? वेदर इन द स्टोरी फॉर्म के टेक्स्ट किस तरीके से लिखा हुआ है महाभारता में, मतलब जो भी उन्होंने ढूंढा है कि वो स्टोरी फॉर्म में लिखा हुआ है दैट द पीपल कुड हैव रीड, जिसको आम जनता समझ सके, सुन सके, या जो इंटरेस्टिंग हो तो दोबारा किसी और को सुना सके, या मंत्रास की फॉर्म में जो स्पेशल रिचुअल स्पेशलिस्ट लाइक ब्राह्मणाज ही जिनको समझ या पढ़ पाते थे, इस फॉर्म में टेक्स्ट में लिखा गया है. थर्ड वन इज दैट ऑथर्स हु रोड दिस. तो बट नेचुरल सी बात है, मैंने तुम्हें बताया था 1000 साल लगे थे, तो कोई एक बंदा तो या दिस वाज नॉट द वन पर्सन हु रिटन ऑल दीज थिंग्स. तो ऑथर हिस्टोरियन ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट द ऑथर्स. बाय द ऑथर हिस्टोरियंस फाइंड्स देयर पर्सपेक्टिव. हिज ऑथर्स से उनको पता चला जो लिखने वाला होता है बेसिकली, लाइक यू डिड इन दैट लिटरेचर ऑल्सो,
with the help of the author we find out what the author, what the writer perception was there, what he was thinking at that time, whether he was thinking of herself or himself, or he or she was thinking of the that audience. Clear? So it depends. So historians try to find out their perspectives and the ideas that shape the text, as well as the interest of the audience in the mind while composing the text. तो जो है ये ढूंढने की कोशिश की थी कि भाई किसने लिखा है, आफ्टर दैट डेट किस टाइम पे लिखा गया है। स्पेशली जैसे मैंने आपको कोई भी चीज़ हिस्ट्री में बताती हूँ, बेसिकली जो मैं जिसको फोकस करती हूँ दैट इज़ द टाइम लाइन, प्लेस ऑफ कंपोजिशन। लाइक इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर आई टोल्ड यू, बहुत अलग अलग जगह और अलग अलग भाषाओं में और सब कंटिनेंट में पाई गई थी, उसको इकट्ठा करके इस जो है फिर इन्होंने इकट्ठा करके लिखे। तो लाइक दैट वेयर इट रिटन, इन द फॉरेस्ट, इन द गुरुकुल और इन द रॉयल पैलेस, वेयर इट वॉज रिटन। This the whole, they are not talking about only Mahabharata, they are talking about the text, yeah, different episodes in the Mahabharata. Clear? And at the last, content. So what the content is saying, after above inquiries, next step is to content of the text to understand the historical significance, how much it is important for the history. So basically historians find out all these things: language, text, authors, date, place, content. So with all these things historians find out that it is important for the history or historical significance, or if it is important, then how much it is important. As we can imagine, this is part a difficult task. This is part nahi hai, it is partially a difficult task to understand the text as complex as Mahabharata. So it is also not an easy task, like to find out anything. Like it is very difficult for the historians to find out anything from the any text that is unknown. It is not the easiest task. You can understand that when we are doing some unknown chapters, that is also how much difficult for us to understand without a guidance. So just like these type of the historians face so many difficulties, clear, to find out these text. So these were the things that historians actually try to find out in the Mahabharata, and it is too complex to find out. Clear? Let's talk about, अब मैंने आपको 6 टॉपिक्स बताए, अब इनको अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। देन फर्स्ट इज द 6.1 लैंग्वेज एंड द कंटेंट। मैं आपको बता चुकी हूँ लैंग्वेज में क्या बताया मैंने आपको। आई टोल्ड यू इन द लैंग्वेज दैट द संस्कृत फॉर दैट बेसिकली यूज्ड बाय द प्रीस्ट एंड एलाइट्स, and the Pali, Prakrit, Tamil used by the common people. Content, what is written in a particular, like content, it is the kind of text come in the content. Then which type it is written, like the narrative form or the detective form. Okay, 2 types of things we are going to do. Mahabharata was written in the simple Sanskrit. Mahabharata was written in the simple Sanskrit that of Vedas and Prashasti, as such it is probably widely understood. तो इसको क्यों लिखा गया, ये एक चीज़ ये पता लगी है कि महाभारता को इतनी सिंपल संस्कृत में लिखा गया ताकि वेदों से और प्रशस्ति से इजी संस्कृत थी, ताकि आम जनता या फिर वाइडली अंडरस्टूड बाय द एवरीवन, सबके द्वारा समझी जाए. तो दैट इज द फर्स्ट थिंग. Second, come to the main point, that is the narrative and the deductive. This is the basic and the main point of this whole content. Historians classified the content into two heads. Two kinds of text पढ़े हैं, just like that. Two kinds of text were there. फर्स्ट इज दैट, उसमें मैंने आपको टेक्स्ट क्या बताया, दो तरीके के मैंने आपको टेक्स्ट बताए. व्हाट इज दैट टेक्स्ट? टू काइंड ऑफ टेक्स्ट. दैट इज दैट मंत्रास एंड द स्टोरी फॉर्म. दो तरीके से लिखे गए हैं, मंत्रास में लिखा है, स्टोरी तरीके में लिखा गया है. ठीक है, जस्ट लाइक दैट कंटेंट जो है दो तरीके से लिखे गए थे, एक तो नरेटिव में एंड डिडक्टिव. हिस्टोरियल फाउंड या क्लासिफाइड किया कि दो टाइप्स में इन्होंने क्लासिफाइड किया है, नरेटिव एंड डिडक्टिव. नरेटिव इज जस्ट लाइक द स्टोरी फॉर्म. जैसे हमने एकलव्य की स्टोरी पढ़ी है, हमने बीच के अंदर और छोटी छोटी स्टोरीज पढ़ी, दैट इज द नरेटिव फॉर्म. डिडक्टेड इज दैट इन विच डिडक्टेड जस्ट बेसिकली दैट वी कैन से, इसके अंदर जो है इंस्ट्रक्शंस आती हैं डिडक्टिव में, दैट इंस्ट्रक्शंस which contain a prescriptions about social norms की prescriptions mean for the purpose of instruction like just like in the Bhagavad Gita, what we have to do and what we cannot do.
ठीक है, या व्हाट इज वी नॉट सपोज टू डू, लाइक व्हाट इज गुड फॉर अस एंड व्हाट इज बैड फॉर। डिटेक्टिव होती है जो हमें इंस्ट्रक्शंस की तरह दिया, हमारे प्रिस्क्रिप्शन सोशल नॉर्म्स बताए जाते हैं जिसके अंदर या इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, क्लियर, कि हमें धर्म के लिए हमें क्या करना चाहिए, धर्म के लिए। तो दो तरीके से बताई गया है इसके अंदर, नरेटिव फॉर्म में, लाइक यू कैन अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल ऑफ द एकलव्य, एंड डिटेक्टिव फॉर्म में बताया गया। टू तरीके से जो है कंटेंट को बताया गया है। Now, after how the division was not sharp, means including the stories in the, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम जो है इन लोगों ने एकदम बेसिकली एकदम अलग अलग किया कि नाउ डिटेक्टिव आ गया, नाउ नहीं, ऐसा कोई पर्टिकुलर इसमें डिवीजन नहीं था। बेसिकली जो है जैसे एकलव्य की स्टोरी बताई है, एंड आफ्टर दैट दे स्टार्ट गिविंग द इंस्ट्रक्शन कि व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट वी नॉट सपोज टू डू, क्लियर, दैट these type of thing। और डिटेक्टिव के अंदर स्टोरीज तो मिक्स मर्ज था, इंक्लूडेड स्टोरीज एंड सोशल मैसेज बोथ। महाभारत वॉज ड्रामेटिक एंड मूविंग स्टोरी एंड हिस्टोरियंस बिलीव दैट डिटेक्टिव सेक्शन वॉज एडिड। तो महाभारत बेसिकली तो एक ड्रामेटिक स्टोरी है, एक स्टोरी तो है, ये माना जाता है ये जो डिटेक्टिव पोर्शन है, लाइक ये भगवद गीता का इंस्ट्रक्शन का, ये बाद में ऐड किया होगा। स्टार्टिंग में चलते फिरते सब स्टोरी लिखी गई होगी, ठीक है, एंड आफ्टर दैट जो है ये बाद में सेक्शन ऐड किया गया होगा। नाउ दिस टेक्स्ट इज डिस्क्राइब्ड एज, अब इस टेक्स्ट को जो है, इस टेक्स्ट को क्या कहा जाता था पहले, इतिहास कहा। संस्कृत एडिशन में जो भी ये पढ़ा है कि इतिहास कहा गया है, दैट्स वाई जो वी डिड इन दैट, इतिहास मीन्स हिस्ट्री, डज इट वाज, कि ऐसा था उस टाइम पे, तो दैट्स वाई इट इज़ ट्रांसलेटेड एट हिस्ट्री, एंड वी, एज यू ऑल नोइंग, वी आर डूइंग इट इन द हिस्ट्री ऑल्सो, दैट वी आर नॉट श्योर अबाउट द रियल वॉर, that some historians believed that actual conflict between the Kaurav and Pandavas were orally transmitted and preserved in the narrative form। ठीक है, तो हम कोई श्योर नहीं है कि असली में लड़ाई हुई थी या नहीं हुई थी, कोई भी हिस्टोरियंस इस बारे में श्योर नहीं है, बिकॉज हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, बैटल का कोई भी एविडेंस नहीं है। हाँ, ये माना जाता है कि कौरव और पांडवास के अंदर हिस्टोरियंस मानते हैं अगर कोई जो है कन्फ्लिक्ट हुआ होगा तो उसे ऑरली जो है ट्रांसमिटेड, ऑरली उसे बताया जाता होगा या बाद में उसको सुनाया जाता होगा, और बाद में उसको जो है नरेटिव की फॉर्म में या फिर स्टोरीज की फॉर्म में प्रिजर्व कर लिया होगा, क्लियर, दैट इज द थिंग। कम टू द नेक्स्ट वन, ऑथर्स एंड द डेट। देखो मैंने आपको क्या बताया कि स्टोरियंस किस किस तरीके से जो है टेक्स्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें मैंने आपको लैंग्वेज बताया है, कंटेंट बताया है, डेट है, डे है, दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ द टेक्स्ट है, क्लियर, जिसके अंदर मैंने लैंग्वेज हम क्लियर कर चुके हैं, फिर कंटेंट एंड काइंड्स ऑफ टेक्स्ट भी हम क्लियर कर चुके हैं। कम टू द ऑथर्स एंड डेट्स। ऑथर्स एंड डेट्स की बात करते हैं तो किसने लिखा होगा, एज वी ऑल आर नोइंग, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 1000 ईयर्स, इट टुक 1000 ईयर्स। सो डू यू थिंक सो कि 1000 ईयर्स वन पर्सन कैन, आई डोंट थिंक सो, डू यू, नो इट कैन नॉट, ठीक है। सो वॉट maybe what happened, like according to the historians, what they find out, like the original story of Mahabharata, if we see the original story of Mahabharata first orally composed by the charioteer bards known as the Sutas। लाइक सूतर्स कौन होते हैं, द चैरिटर बार्ड, जो मतलब रथ को चलाया करते थे, ये सब वो, क्योंकि वो युद्ध के मैदान में रहा करते थे, अगर कोई युद्ध हुआ है तो उनके साथ रहते थे, तो पूरे दिन जो युद्ध होता था उसको देखते थे, और शाम को या बाद में जो है उन्होंने जो है इस युद्ध को मतलब ओरली जो है कहानियों के तौर पे सुनाना शुरू किया कि लाइक व्हाट हैपेंड एट द टाइम, डिफरेंट जो सेक्शंस हैं, जो व्हाट हैपेंड एट द टाइम ऑफ दीज थिंग्स। तो उनको बाद में जो है सबसे पहले ओरली आया होगा, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस की ओरिजिनल स्टोरी तो ओरली ही बताई गई होगी, क्लियर, एंड आफ्टर दैट अकम्पेन द क्षत्रियाज वेरियस बैटलफील्ड। ये तो है सूतास के बारे में कि जिन्होंने विक्ट्रीज, अचीवमेंट, पास उनके साथ रहते थे दिन रात, तो उनके बारे में वो लोग कहानियाँ सुनाया करते होंगे। Since the great epic covered a period of 1000 years, so not possible written by the one person. So then 500 BC ब्राह्मणस took over the stories and start writing that। अब पहले ओरली थी, बाद में जो है जो हमारा जो टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं हम, स्पेशली 600 to 600, तो 500 BC के आसपास ब्राह्मणस ने इन स्टोरीज को लिया एंड आफ्टर दैट स्टार्ट राइटिंग दैट। तो यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट द ब्राह्मणस ने उनको लिखा या मनुस्मृति लिखी गई हैं, तो मे बी दे ऑल्सो रिटन अकॉर्डिंग टू देयर पर्सपेक्टिव। जो स्टोरी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो ऑथर सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, क्लियर, कि उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव उसके अंदर रखा होगा, क्लियर। उसके बाद क्या हुआ होगा, आफ्टर दैट दिस स्टोरी इज बेसिकली ऑफ द कोरोज एंड द कुरुज एंड द पंचालस के आसपास की है।
अगर हम मैप में देखते हैं, अराउंड द स्टोरी ऑफ द एपिक रिवॉल्व वर ग्रेजुअली बिकम द किंगडम्स। सो स्टार्टिंग में ये चीफडम जो थे इसके आसपास की इर्द गिर्द की स्टोरीज़ हैं ये, तो यहाँ पर जो है गाया सुनाया जाया करती होंगी, या फिर इस टाइम पीरियड के अंदर जो है ये जो है चीफडम्स जो हैं इनको सुनते होंगे। एंड आफ्टर दैट जब वो चीफडम धीरे धीरे बड़े हुए, किंगडम्स बने, तो उन्होंने अपने हिसाब से जो है रूल्स बनाने की कोशिश की, जिसके अंदर उन्होंने न्यू फॉर्म्स रिप्लेस्ड बाय द न्यू फॉर्म्स, इट हैज टू बी रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड। सो इट वाज फेल्ट दैट आफ्टर द ओल्ड किंग्स द न्यू किंग्स वर often replaced and new forms that are reflected some parts of the story, that we can say. So what we done, first orally, then after written by the Brahmanas, then after that the particular areas, Kurus, Panchalas, particular areas, their kingdoms start writing again these start writing again these itihas, ठीक है, they want to preserve their itihas, they want to preserve their history, so the new kings start replacing by the new norms, और उन्होंने अपने norms भी उसमें ऐड कर दिए होंगे। तो what I am trying to say is that those who wrote all these things one by one, जो भी authors आए, they start adding their norms, their perspective in that, clear? So that doesn't mean the starting में जो story बोली जाती थी वो सेम ही, तो जो हम जो जानते हैं वो सेम ही, उसमें कुछ कुछ चीज़ें अकॉर्डिंगली जो है सब कंटिनेंट के अकॉर्डिंग, किंगडम के अकॉर्डिंग, उसके अंदर उनके नॉर्म्स, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन आए होंगे, क्लियर? कम टू द आफ्टर दैट, उसके बाद हम बात करते हैं 200 BC या 200 CE के टाइम, जो स्पेशली जो है कृष्णा की वर्शिप की जाती थी, कृष्णा को विष्णु का अवतार माना जाता था, इसीलिए जो है कृष्णा, द टीचिंग ऑफ कृष्णा टू अर्जुन इज बैटलफील्ड बिकम इंपॉर्टेंट सेक्शन। और महाभारत में ये चीज़ जो है पहले से आप सब जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है, द टीचिंग ऑफ द कृष्णा टू द अर्जुन, क्लियर? सो इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करते हुए जो डिडैक्टिक सेक्शन है, जो इंस्ट्रक्शन किसने दिए है, भगवद गीता बाय द कृष्णा, ठीक है, लॉर्ड कृष्णा, तो दैट पर्टिकुलर सेक्शन सब्सिक्वेंटली बिटवीन 200 BC to 200 CE द डिडैक्टिक सेक्शन रिजेंबलिंग द मनुस्मृति वर एडेड, और उसके बाद जो है ये ऐड किया होगा। तो एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, डिडैक्टिक सेक्शन इंस्ट्रक्शन सेक्शन जो बाद में ऐड किया होगा, जब भी स्टार्टिंग में जो ये जो 10,000 से कितने 1 लाख वर्सेज हुए आफ्टर एडिंग द डिडक्टिव सेक्शन। And at the last we all are knowing then who composed this first, Rishi Vyas, Ved Vyas, clear? Now but that doesn't mean he is the author, ठीक है, ऋषि वेद व्यास, बट it was knowing about all that who composed this, that ऋषि व्यास। So this is the second thing that we did, ki authors and dates, and after that let's start about, so these were the things that historian find out कि okay the authors, maybe authors ने इस तरीके से लिखा होगा, maybe dates इस तरीके से आई होंगी, maybe places ऐसे रहा होगा, तो like that the historian trying to find out the historical truth कि क्या truth होगा, मतलब the search of convergence, मतलब what how much truth is there in the story or the all in the story basis only, clear? So let's talk a truth को हम दो तरीके से पढ़ेंगे, हिस्टोरियंस ने फाइंड आउट किया। तो प्लेस जो अभी बाकी रह गया था, लाइक मैंने ऑथर बताए हैं आपको, मैंने आपको डेट बताया है, देन टेक्स्ट कंटेंट्स बताए हैं, देन लैंग्वेजेस हो गई है। आफ्टर दैट प्लेस में बेसिकली हम किसकी स्टोरी पढ़ते हैं, हस्तिनापुर की, क्लियर? तो हिस्टोरियंस ने हस्तिनापुर के जो है फाइंड आउट करने की कोशिश की कि हस्तिनापुर जितना दिखाया जाए कि इतना बड़ा राजमहल है या फिर लाख की स्टोरी है, उसके अंदर 1 लाख का पैलेस और ये सब, तो ये क्या बेसिकली सारी चीज़ें थी या उसमें कुछ जो है नहीं, उसमें कुछ जो है नहीं भी था, क्लियर? सो दो तरीके से इसको जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे। महाभारता कंटेन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ पैलेसेस, सेटलमेंट, फॉरेस्ट, बैटल्स इन टू वास्ट, बहुत ही विविड है। फॉर सर्चिंग द ट्रूथ देयर वर एफर्ट्स ऑफ हिस्टोरियन फॉर फिक्सिंग द प्लेस, और उस प्लेस के लिए बीबी लाल, वेरी इंपॉर्टेंट, 1951 और 50 आर्कियोलॉजिस्ट थे, बीबी लाल, उन्होंने एक्सकवेट किया उस प्लेस को जिसका नाम है हस्तिनापुर। बेसिकली जब इन्होंने एक्सकवेट किया था तो ये क्या था, ये हस्तिनापुर जो था एक गांव की तरह, मेरठ में जो है एक जो है गांव है जो वहाँ पे जो है हस्तिनापुर निकला है। लेकिन क्या ये वही है हस्तिनापुर जो हम कुरुस की जो है उसमें मेंशन किया गया टेक्स्ट में? लेकिन तो वी कैन से लाइक दैट जो गंगा जो दोआब है, ठीक है, वहाँ पे जो है उसके जो अपर दोआब के अंदर वहाँ पे गंगा में ही जो है कुरु का जो है कैपिटल यहीं पाया गया था, और ये वही हो सकता है, मे बी ये वही हस्तिनापुर हो। तो इफ़ यू कंपेयर विद द हस्तिनापुर
क्लियर। तो इसमें बहुत सारे जो हैं चेंजेस पाए गए हैं, तो इसमें देखते हैं कि वही है। नहीं तो लाल ने जो है 5 एक्सकवेशन में अपनी पूरी की पूरी थ्योरी को कंप्लीट किया, जिसमें से सेकंड और थर्ड फेज को हमें पढ़ना है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड फेज जो उन्होंने जो है फाइंड आउट किया था, दैट इज फ्रॉम 10th to 7th BC। उस टाइम पीरियड में मीन्स इन्होंने ये जो है 51 से 52 में इन्होंने एक्सकवेट किया, लेकिन उसके अंदर लेयर्स में आते हैं ना टाइम पीरियड, अकॉर्डिंग दैट लेयर्स में 12th to 7th BC, मतलब 6 से भी पुरानी। उस टाइम पीरियड में जब इन्होंने इस हस्तिनापुर को, या जो विलेज जो इन्होंने एक्सकवेट किया उसमें देखा, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी। कोई डेफिनेट प्लान ऑफ हाउस नहीं था, जबकि हम महाभारत में या फिर हम क्या पढ़ रहे हैं उस टाइम पीरियड में, बहुत बड़े बड़े पैलेसेस एंड वॉल ऑफ मड एंड मड ब्रिक्स, और हमने इसमें पूरे पूरे पैलेस पढ़े हैं, बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स पढ़ी हैं। एंड रीड प्लास्टर ऑन हाउसेस, रीड प्लास्टर होता है जो कच्चा से प्लास्टर करते हैं, जैसे मिट्टी का, इस तरीके इसमें लाइंस भी नजर आती हैं, इस तरीके के प्लास्टर्स पाए गए थे सेकंड फेज के अंदर। फिर उन्होंने थर्ड फेज किया, थर्ड फेज के अंदर जो फाइंड आउट किया 6th to 3rd BC। 6th to 3rd BC के अंदर मड एंड बर्न ब्रिक्स वर फाउंड, बर्न ब्रिक्स आने लगी, मड की तो थी। सोके जार्स वर फाउंड, सोके जार जैसे लाइक द जिसके सोके जार जो हमारे ड्रेनिंग के और इनके काम आते हैं, जिसके अंदर हम जो है ड्रेनेज सिस्टम्स के जार होते हैं। टेराकोटा रिंग्स भी मिली हैं, ठीक है, मे बी वो वेल्स के लिए काम आती होंगी या ड्रेनिंग के काम आती होंगी, तो ये थर्ड फेज के इनको जो मिले हैं। सो इफ़ वी कंपेयर विद द स्टोरी, इट सजेस्टेड नो रियलिटी इन द महाभारत, कि उन्होंने जो बताए बड़े बड़े पैलेसेस जो हैं, बड़े बड़े जो हैं लाइक सेटलमेंट्स बताई हैं, अर्बन एरियाज, तो इसमें तो कहीं भी रियलिटी नहीं नज़र आ रही है अकॉर्डिंगली। तो फिर क्या हुआ होगा, तो मे बी इट कैन बी हैपन लाइक दैट। तो जिन ऑथर्स ने इनको टाइम टू टाइम लिखा है, अकॉर्डिंगली उस टाइम पे उनके एरियाज जो रहे होंगे, वो एरियाज जो हैं अर्बन एरियाज रहे होंगे, तो उस टाइम पे जो उनके पास टाइम पे जो उन्होंने लिखा है, वही उन्होंने महाभारत की स्टोरीज के अंदर ऐड कर दिया होगा। तो मे डिस्क्रिप्शन of these town that mention Mahabharata epic are added afterwards, so that can be, it can be added afterwards when the narrative had been composed after 600 BC। Second, एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है फ्लाइट ऑफ द पोएटिक फैंसी। जैसे पोएट होता है, जब लिखते टाइम बड़े बड़े जो हैं अपने राइम्स के लिए या फिर अपनी इमेजिनेशन को जब वो डालता है किसी पोएट्री में, तो वो भी हो सकता है उसने इमेजिनेशन में, जब वो महाभारत की स्टोरी लिख रहा है तो बड़ी बड़ी इमेजिनेशन भी उसने डाली होंगी, इट कैन बी पॉसिबल। क्लियर। तो दीज वर द थिंग्स जो है मे बी हो सकती होगी। नाउ आफ्टर दैट लेट्स टॉक अबाउट दैट नेक्स्ट। एक तो मैंने आपको बताया इसके अंदर, सेकंड में जो है मैं आप इसके अंदर पहला वाला मैंने आपको क्या बताया है, हस्तिनापुर, ठीक है, प्लेस के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉलीएंड्री। लेट्स टॉक अबाउट पॉलीएंड्री। द्रौपदी के जो हैं 5 हस्बैंड्स थे, ठीक है, तो उसको हम फोकस करते हैं पॉलीएंड्री को। क्या असली में, क्या रियलिटी के अंदर पॉलीएंड्री हुआ करती थी? क्लियर। तो इसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन करें, किस तरीके से इसको समझने की कोशिश की होगी हिस्टोरियंस ने। सो इफ़ यू एग्जामिन दिस सेक्शन ऑफ द एपिक, ऑथर एक्सप्लेन्स इन अ वैरायटी। तो ऑथर्स ने इसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हाउ, किस तरीके से, अलग अलग तरीके से। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारे ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन उन्होंने ये दिया है कि हो सकता है रूलिंग एलाइट्स के अंदर प्रिविलेंट हो, या किसी समय में किसी वक्त में एट द टाइम ऑफ द रूलिंग एलाइट्स इज द नॉर्मल थिंग्स पॉलीएंड्री भी होती होगी मे बी, लेकिन ब्राह्मणास ने उनको कभी एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे अगर आप महाभारत आपने देखी भी है तो यू कैन अंडरस्टैंड एट द टाइम ऑफ द स्टार्टिंग इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड एंड आफ्टर दैट एक्सेप्टेड। तो हो सकता है ब्राह्मणास ने जब 500 BC में लिखा है तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, इस एपिसोड को। टेक्निकली लेटर इट वॉज फाउंड इन हिमालय रीजन, लेकिन अगर हम बाद की बात करते हैं, उस टाइम की बात करते हैं, तो हिमालय रीजन के अंदर जो है पॉलीएंड्री हुआ करती थी। तो मे बी अगर हम टेक्निकली फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो होता होगा पॉलीएंड्री एट दैट टाइम। Others suggest that there have been shortage of the women during the time of the warfare. This led to the polyandry. This can be the reason. The shortage of the women can be the reason. So there are so many. If we think there are so many aspects. Authors try to find out like variety of ways. Like the ruling elites में भी हो सकता है, ब्राह्मणास ने अपोज भी किया है, हिमालय रीजन्स के अंदर जो होती थी जनरली पॉलीएंड्री, या फिर शॉर्टेज ऑफ वुमेन कैन बी द रीजन। तो देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट कैन maybe happened at that time. So some sources suggest that polyandry were not prevalent from the form of marriage, maybe the creative literature, and the last one as usual maybe the poets form. उन्होंने अपनी स्टोरी को बहुत ज़्यादा
पावरफुल बनाने के लिए, क्रिएटिव बनाने के लिए लिटरेचर के अंदर उन्होंने अपनी इस चीज़ को एक जो है इसको एक सेंट्रल स्टोरी के अंदर इसको मुद्दा बनाया होगा। तो क्रिएटिव लिटरेचर ऑफन हैज़ इट्स ऑन नरेटिव रिक्वायरमेंट एंड डज नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट द सोशल रियलिटी। और लिटरेचर के अंदर ज़रूरी नहीं है हमेशा सोशल रियलिटी को ही वो उनकी जो है दैट अभी मैंने आपको जैसे बताया था फ्लाइट ऑफ द पोएट फैंसी भी हो सकती है, ठीक है, लाइक दैट। Now, so this was the thing. This is the last 6.3 topic. And the last one is the dynamic and the easiest one. तो ये डायनेमिक टेक्स्ट है, बिल्कुल डायनेमिक टेक्स्ट है। किस किस तरीके से है? फॉर एग्जाम्पल अलग अलग एरियाज के अंदर स्प्रेड इन द मैनी प्लेसेज, डिफरेंट लैंग्वेजेस, संस्कृत वॉज मोस्ट प्रोमिनेंट एंड द सेंट्रल स्टोरी नेवर चेंज। यू कैन थिंक लाइक दैट Mahabharata found in the different parts of the subcontinent, but the basic story was the same. क्लियर? नाउ द बेसिक स्टोरी के इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें घूम रही हैं, स्टोरी कभी नहीं बदली है। आफ्टर दैट जो अकॉर्डिंगली सब किंगडम्स में अपने अकॉर्डिंग उन्होंने रूल्स चेंज किए हैं। एंड द सेम स्कल्पचर्स, एपिसोड्स को पूरे एपिसोड्स को डिपिक्ट किया गया स्कल्पचर्स में, पेंटिंग, आर्ट, डांस, ड्रामा के फॉर्म में जो है डिपिक्ट किया गया है, और अदर काइंड्स ऑफ स्टोरीज भी उसमें ऐड की गई हैं, नरेशंस। So we can say the most retelling and reenactment of epic draw main story or the narrative in a creative way. One more thing I want to tell you is that this the story all depend upon the author's way of writing. For example, in this, Mahashweta Devi was she was a contemporary Bengali writer at that time, and she wrote a story, the story related to Mahabharata, that is Kunti Nishadi. Clear? There is a story at the time of the Lakh Palace. Clear? At that time the Kunti and his 5 sons struck in the palace, and after that how they move out from that palace. Clear? So this is the story, and the authors, the basic main story was this only, and the authors trying to move around the story, एंड द सेंट्रल स्टोरी नेवर चेंज। और वो जो आसपास की जो स्टोरी या फिर जो होती है उसको किस तरीके से बताते हैं, लाइक हमने जो महाभारता में देखा है वो इस तरीके से देखा है कि किस तरीके से कुंती वहाँ से बचती है, और वहाँ पे वो 5 जो हैं ये दिखाया गया कि 5 वो जो हैं निषादी और उसके 5 बेटे वहाँ मर जाते हैं एंड ऑल दैट। लेकिन इन्होंने जो महाश्वेता देवी ने इसको अलग तरीके से बताया कि युद्ध के बाद सब कुछ खत्म हो गया था, तो कुंती किस तरीके से स्टोरी सुना रही थी पेड़ पौधों को, जंगलों को, एंड आफ्टर दैट जो है निषादी वगैरह जो हैं और वो वहाँ पे जो है सुन रही होती हैं बाकी निषादीज एंड ऑल दैट। इस तरीके से इन्होंने जो स्टोरी को बताया। सो बेसिक स्टोरी सेम रहती है, लेकिन ऑथर्स के अकॉर्डिंग स्टोरीज जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग स्टोरीज को इंटरप्रेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हिस्टोरियंस ने फाइंड आउट करने की कोशिश की होंगी विद द हेल्प ऑफ द महाभारत। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं, 2 main डिफ़िकल्टीज हिस्टोरियंस फाइंड आउट एट दैट टाइम, बट स्टिल आफ्टर 2 main difficulties they conclude the things के languages, content, states and everything. At the last few questions about the content of Mahabharata language, these all are the easiest question that you can all do. Why it is a dynamic text? It is dynamic because of the language, because of the different type of the writings, and because of the different languages. Clear? So how compose the origin story of Mahabharata, and these all were the questions that you have to do. Thank you.